اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا خوبصورت واقعہ۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا اور فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے، یہ خبر سن کر ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیرخواہ تھا، وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیں۔ آپ جلد سے جلد اس شہر سے نکل جائیں۔ اس پر مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے مصر کی سرحدیں پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور وہ اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھی اور یہ بستی فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس نہ کوئی اچھی سواری تھی اور نہ ہی کوئی ہمراہ۔ راستے میں درختوں کے پتے اور زمین پر سبزوں کے سوا کوئی چیز کھانے کو نہ ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی روز تک تنہا چلتے رہے۔ یہ راستہ وہ تھا جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی طے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 روز تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر آپ شہر کے ایک کنارے کے پاس ایک کنویں کے پاس تشریف لائے، جس کنویں سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ آپ نے 2 عورتیں دیکھی، جن عورتوں نے اپنے آپ کو اس طرح روک رکھا ہے کہ کنویں کے لوگ پانی پلا کر جائیں اور کنواں خالی ہو تو اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، کیونکہ کنویں کو طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور عورتوں کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کنویں کے پاس آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی رحم دل تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ان عورتوں پر رحم آ گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے پاس گئے۔ کنویں کے پاس جو لوگ کھڑے تھے ان کو اپنے پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو، اپنے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان چرواہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو وہ سہم گئے لباس سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قبطی سردار لگ رہے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ کافی لمبے چوڑے اور جان والے انسان تھے، لہذا چرواہے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور ان لوگوں نے ڈور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر کہا، لیجئے، اگر آپ پانی نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور آپ کو بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی، جس نے آپ کے جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس ڈور کو کنویں میں ڈال کر پانی کھینچا، جسے 8 یا 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتینوں کو پانی دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت دھوپ اور گرمی بہت شدید تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی روز تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور سر چھپانے کے لیے کوئی آسرا بھی نہ تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام تھکان سے چور ہو کر پاس میں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے عطا کرے اس کا محتاج ہوں۔
उधर वह दोनों खवातीन जो पानी का इस्तेमाल करके अपने घर चली गई थी, दरअसल ये दोनों खवातीन हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। जब वो रोज की निस्बत उस दिन घर जल्दी आई तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ मेरी बेटियों, आज इस तरह आप जल्दी कैसे आ गई? उन्होंने फरमाया कि कुएं के पास हमें एक नेक मर्द मिला था, उसने हमारी मदद की और हमारे जानवरों को सैराब कर दिया। इस पर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ, इस नेक मर्द को मेरे पास बुला कर लाओ। उनमें से एक साहबजादी चेहरे को कपड़े से ढके हुए और शर्माती हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई। उसने जाकर कहा, आपको मेरे वालिद बुला रहे हैं ताकि वह आपको उस काम की मजदूरी दे जो आज आपने हमारे लिए किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो अजर लेने के लिए राजी ना हुए। जब उनको पता लगा कि उनके वालिद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, तो उनकी जियारत के लिए, उनसे मुलाकात के लिए चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस खातून से कहा कि आप मेरे पीछे रहकर मुझे रास्ता बताती जाएं। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के मकान तक पहुंच गए। आपको देखकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया और अपनी बेटियों को खाना हाजिर करने को कहा। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठिए और हमारे साथ खाना खाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी यह बात मंजूर ना की और फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि खाना ना खाने की वजह क्या है? इस पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि यह खाना मेरे उस अमल का बदला ना हो जाए जो मैंने आपके जानवरों को पानी पिलाकर अंजाम दिया है, और मैं नेक अमल पर बदला लेना कबूल नहीं करता। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम फरमाया, ऐ जवान, ऐसा नहीं है, यह खाना आपके अमल के जवाज में नहीं होगा, बल्कि यह मेरे और मेरे खानदान की आदत है और रिवाज है कि हम मेहमान नवाजी किया करते हैं और मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए और आपने खाना तनाव फरमाया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से मिस्र के अहवाल फिरौ के साथ गुजरे वक्त और अपने पैदाइश से लेकर किप्ती के कत्ल और फिरौनियों को आपका दुश्मन बन जाने के मुताल्लिक तमाम हालात बयान किए। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब आपको फिर से डरने की जरूरत नहीं है, अब आप निजात पा चुके हैं, क्योंकि यहाँ मदियन में फिरौ की हुकूमत या सल्तनत नहीं है। जब आपने खाना खा लिया और गुफ्तगू भी कर ली तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी ने फरमाया, अब्बा जान, आप इसको मुलाजिम रख लें कि ये हमारी बकरियां चराया करें और यह काम हमें ना करना पड़े। बेशक अच्छा मुलाजिम वही होता है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी से फरमाया कि तुम्हें उनकी कुव्वत और ईमानदारी का इल्म कैसे हुआ? खातून ने कहा कि कुव्वत तो इससे जाहिर होती है। इन्होंने कुएं से डोर को तन्हा खींच लिया जिसको 10 से कम आदमी नहीं खींच सकते, और अमानत इससे जाहिर है कि इन्होंने हमें देखकर अपना सर झुका लिया और नजर न उठाई और मुझसे कहा कि तुम पीछे चलो और मैं आगे चलता हूँ कि कहीं हवा के झोंके से उनका कोई कपड़ा आगे पीछे ना हो और उन पर नजर ना पड़ जाए। यह सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत मुतासिर हुए और कुछ देर सोचने के बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक पेशकश की। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मेरी एक बेटी से निकाह कर लीजिए। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस निकाह का महर यह होगा कि आपको 8 बरस मेरी मुलाजमत करनी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की यह पेशकश मंजूर कर ली और राजी हो गए
और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बड़ी साहबजादी जिनका नाम सफूरा था उनके साथ हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 बरस की बजाय पूरे 10 साल की मियाद पूरी फरमाई। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बकरियां मदियन की वादियों में चराते हुए गुजरे 10 साल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बेहतरीन साल और पुरसुकून वक्त था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मदियन जैसे इलाके में रहने का मौका मिला जहां फलों और मेवों की कसरत थी। आपको हजरत शोएब अलैहिस्सलाम जैसा ससुर मिला और सफूरा जैसी नेक हमसफर मिली जिसके साथ आपकी जिंदगी मुकम्मल और मजीद खूबसूरत हो गई। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तमाम जिंदगी चरहा बनकर नहीं गुजार सकते थे। मदियन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महफूज थे, लेकिन वो अपनी कौम बनी इसराइल को फिर से निजात देना अपना फर्ज समझते थे। आप चाहते थे कि आप अपनी कौम के लिए मदद को जाएं, जो गुलामी की जंजीरों से बंधे हुए थे, और यही फिक्र आपको मिस्र जाने के लिए आमादा कर रही थी। 10 साल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की इजाजत से अपनी बीवी सफूरा के साथ मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब आप मिस्र तशरीफ ले आए तो एक वक्त गुजरने के बाद फिरौन आपके मौजे देखकर आपको मारने का हुक्म दिया और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की तरफ वही फरमाई कि आप आज रात अपनी कौम को लेकर यहाँ से निकल जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया के किनारे पहुँचे। फिरौन को खबर हुई तो फिरौन अपना लश्कर लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के पीछे आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के पीछे फिरौन था और आगे दरिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई और अपना असा पानी में दे मारा तो दरिया 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम उस दरिया से गुजर गई और फिर जब फिरौ इस दरिया से गुजरने लगा तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि दरिया अब तू ऐसा हो जा जैसे तू पहले था। और फिर फिरौन और उसका लश्कर इस पानी में डूबकर मर गया। बेशक यह दुनिया फानी है और बाकी रह जाने वाली अल्लाह ताला की जात है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं और यह यकीन करते हैं कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई है। तो इस वीडियो को आप सवाब की नियत से अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें।